So in the last lecture, we had seen how do you manage people in the software environment and what are the main topics which will be covered under this chapter. Now we'll start with the chapter organizational behavior. That means it describes about the work culture of an organization, environment of an organization, people who are working for that organization. That means overall it describes the anatomy of an organization, organizational behavior. Okay, there is a subject also on that directly. It is a topic here given over here, but there is a subject in MBA. When you go for MBA, you will be having a subject called as organizational behavior. We had this in our MCA ka syllabus, organizational behavior, one complete subject. So what this organizational behavior says, Frederick Taylor, he is a management guru. It is called as a father of scientific management. Frederick Taylor, Peter Drucker, all those people were management gurus. They are called as the modern management gurus. So what they said over here, when you're considering any organization of behavior, what you need to focus on. First one is to select the best people for the job. Obviously, wherever you find any job, means people working in the job, the company or the person who is hiring the employee will try to find or will try to select the best suitable person for that job. It is not like that the company is just asking the people, you need job na, okay, you do this job, okay, you come over here from tomorrow and you do this job. सब ये काम नहीं आता, नहीं चलेगा, तू सीख ले, यहाँ पर ये सीखने का ही है, पैसा हम लोग तुमको सीखने का देते हैं. No one is going to say like this in any company, in any organization, whether be it a layer company, small layer company, or a top layer company. No one will say that you come and learn over here and we will be feeding you for the lifetime. No. And you cannot be a learner for the same job for a lifetime. For example, अगर तुम लोग कोई .NET पढ़ रहे हो, अगर तुम लोग कहीं भी एज ए ट्रेनी भी लग जाते हो जॉब पे के बाद, एज ए ट्रेनी भी लग जाते हो, ट्रेनिंग के लिए तुमको भेजते हैं, तो 6 महीने के लिए ट्रेनिंग रहता है, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग रहता है, लाइफ टाइम के लिए ट्रेनिंग रहता है. You have to be a learner for the lifetime, but not with the same level of knowledge. You have to keep on upgrading the knowledge. Then you are a learner. Okay. So .NET का जो बेसिक फ्रेमवर्क है, उसका जो एनवायरनमेंट है, जो कन्वर्जन होता है फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कोड टू मशीन लैंग्वेज कोड, जो भी रहेगा तो वो अगर तुम टीवाई में सीखते हो, इंटरव्यू में पूछा वहां पर आंसर दे दिया, लेकिन उसका आर्किटेक्चर पूछा, फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, वो तुम्हें ठीक से बता नहीं पाए, या उसका यूज क्या है वो नहीं बता पाए, तो वो ट्रेनिंग में तुमको बोल देंगे, बता देंगे. लेकिन तुम्हारा ट्रेनिंग होने के बाद जब तुमको प्रोजेक्ट पे रखा गया, उस वक्त तुम अगर बोलोगे कि फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, मुझे नहीं पता, वो उसका यूज क्या है, मुझे नहीं पता, तो कंपनी विल ऑलवेज से दैट कि तू कौन है, मुझे नहीं पता. सिंपल. व्हाई? Because they want to select the candidate who is best suitable for this position, for this post. And even after the training, if you're not able to satisfy that post, then obviously you will be replaced. लाइफ में रिप्लेसमेंट हर एक का है. There is no position or there is no place where you say that कि इसका रिप्लेसमेंट नहीं है करके. SM शेट्टी 2015 में ज्वाइन किया मैंने, उसके पहले भी था, 2015 से 2020 जो मैं जुड़ा हूं तभी भी है. अगले साल अगर सपोज मैं रहूं ना रहूं, SM शेट्टी की बात कर रहा हूं मैं, SM शेट्टी में रहूं ना रहूं, जिंदा रहूंगा मैं, SM शेट्टी में रहूं ना रहूं, SM शेट्टी जिंदा रहेगा, वो चालू रहेगा. मेरे पहले जो था उसका रिप्लेसमेंट मैं बन के आया, मेरे बाद जो आएगा वो मेरा रिप्लेसमेंट बन के आएगा. लेकिन SM शेट्टी ये चेक करेगा कि टीचिंग के मामले में दे हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पीपल फॉर इट. आई एम नॉट सेइंग दैट कि वी आर द बेस्ट, बट वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई फॉर द टास्क विच वी हैव बीन गिवन टू. सो
whenever you have any organizational behavior ka characteristics, the first characteristics is to select the best people for the job, whether that job be of the sweeper or whether it be the job of a vice president or whether it be the job of project manager, project leader, tester, developer, analyst, whatever it is. Whatever position the job is, company will select the best people for the job. And just not selecting the best people, after selection, to instruct them, to tell them what the job they have to do, they use the best method also to express that to them. Matlab, not only method includes environment also, method includes your culture also, work culture, method includes the vicinity also where you're working, everything. That means अगर तुम लोग बेस्ट पीपल को सिलेक्ट करते हो तो उनको बताना भी तुम्हारा तरीका बेस्ट रहना चाहिए. कोई भी कंपनी नदी के बाजू में खुला खोल के नहीं रखेंगे वो लोग. क्यों? जब भी बाढ़ आएगा हम लोग के ऑफिस में पानी भर जाएगा और हम लोग वहां पे बाल्टी से पानी निकालते बैठेंगे, नहीं. और work culture, that means every people, every employee, whether it be sweeper, whether it be an vice president or whether it be owner, every person will be respected by each other in an organization. That has to be the culture of an organization. That means you cannot call a sweeper, ए झाड़ू वाला इधर आ, ये जरा साफ कर, नहीं. You have to call them respectfully. अगर उनका सरनेम है तो सरनेम से बुलाओ, या जो भी नाम रहेगा नाम से बुलाओ, या जो भी रहेगा. And you cannot treat them because they are a sweeper, you cannot treat them as an inferior to you. That is not the work culture of any organization. And you cannot shout at them by sitting at your place. Suppose the sweeper is working at another corner of the office and some dust is there or something is there at your corner. So you cannot just shout from the place and say that कि ये झाड़ू वाले इधर आ, ये साफ करने वाले इधर आ, मेरा टेबल साफ कर. No. Even in our college also, if something spills on the table, चाय गिर जाए या खाना गिर जाए, हम लोग बाहर से चिल्ला के बोलते नहीं, ओ माउस साफ करने वाले इंसान, ओ कचरे वाले इधर आओ. No. We call them मावशी, जरा इथे याल का. We give them respect. आप यहाँ आओगे क्या? हम लोग पूछते हैं उनको, ये नहीं बोलते ने बोलते एक काम वाली भाई इथे ये साफ कर जरा पडले बघ चाय इथे. नो, दैट इज नॉट द वर्क कल्चर. सो इफ यू आर सिलेक्टिंग द बेस्ट पीपल, यू हैव टू ट्रीट देम इन द बेस्ट वे. दैट मीन्स अगर उनको काम पता नहीं है क्या करना है तो उनको बताना भी. अगर हाउस कीपिंग वालों को अगर हायर करते हो तो हाउस कीपिंग का जो इंचार्ज रहेगा वो उनको आके समझाएगा कि देखो स्टाफ रूम में आओगे ना तो यहाँ से पहले झाड़ू मार के लेना, फिर उसके बाद तुम टेबल साफ कर लेना. टेबल के नीचे जो ड्रॉर रहता है वो ड्रॉर भी खींच के साफ करना, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉइज लोग जो है, टीचर्स लोग है, वो खाना खाते हैं तो कभी कुछ खाना वाना गिर गया रहेगा तो वो भी साफ कर लेना. और उसके बाद तुम ये सब पोछा मार के लेना, टेबल के ऊपर सब साफ कर लेना. अगर किसी का सामान रहेगा तो उठा के साफ करो और उस सामान को वापस वैसे के वैसे ही वहीं रखो, ताकि जो टीचर वहां पे रख के गया है उसको ढूंढने में तकलीफ ना हो. और जब तक कोई टीचर ना बोले कि ये सामान उठा के लेके जाओ, तुम कोई उठा के लेके नहीं जाओगे. साफ करने के टाइम पे अगर बीच में आता है तो उसको उठा के तुम साइड में रखोगे, साफ करोगे, वापस वहीं रखोगे. दिस नीड टू बी टोल्ड टू देम पोलाइटली, टोल्ड टू देम प्रोफेशनली, टोल्ड टू देम इन अ ह्यूमन बीइंग वे. नॉट जस्ट टेल देम ये देख, ये दिख रहा है ना, ये सब साफ करने का. अगर कचरा दिखा साफ करने का, ये सामान रहेगा ना उठा के साइड में रखने का और होने के बाद वापस नहीं रख देने का. अगर यहाँ वहां रखा ना तो देख लेना, देखो नौकरी से निकाल देगा मैं. नो, दिस इज नॉट द वर्क कल्चर. दैट पर्सन इज डूइंग दैट जॉब बिकॉज ही और शी इज नीडिंग दैट जॉब. ही और शी कैन नॉट बी at your place where you will be or where you are. He or she cannot be the vice president or president. I'm not denying, but अगर वो एजेड पर्सन है, अगर वो एज अ हाउस कीपिंग करके ज्वाइन हुआ है तो उसका एजुकेशन उतना नहीं रहेगा, उसके हिसाब से उसको जॉब मिला है, ये मिला है. बट
every job is not the inferior. अगर स्वीपर अगर कल को अगर पूरे मुंबई के स्वीपर्स ने अगर स्ट्राइक पे चले गए, क्यों? क्योंकि उनसे ऊंचे वाले जो रहते हैं वो उनसे अदब से बात नहीं करते, रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते. So you won't imagine how stinking our city will be. It will be difficult for you to stay at your home with the windows open, because the garbage which was collected at your just outside the building or any of the society, something like that, that has been lying over there since many days because they are not respected. So it will be difficult for you to survive. So not a single job or not any job in this world is inferior to other. Everyone is giving their best to do the job and they are paid equally for that job. So if you're selecting the best people for the job, you have to instruct them, you have to treat them, you have to train them in the best method, in the best way. I'm not saying कि अगर तुम बेस्ट मेथड से सिखाओगे तो वो गलती नहीं करेगा. नहीं, गलती इंसान से ही होती है. एंड देयर इज अ वे टू टेल दैट पर्सन कि दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक. ऐसा नहीं है कि तुम गलती कर दिया, क्या तेरे को समझ में नहीं आता, इतना अक्ल नहीं तेरे को, इतनी बार समझा तेरे को, चल तू निकल जाए यहाँ से, कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है. नो, दिस इज नॉट द ट्रीटिंग अ ह्यूमन बीइंग. वी डोंट ट्रीट लाइक दिस टू एनिमल्स ऑल्सो. In fact, no living being can consider inferior to other just because his or her strata in the society is inferior to you. No. अभी यहाँ पर भी कचरे वाला आता है हमारे घर पे. यहाँ पे अगर मैं अभी जस्ट ए डिवीजन का लेक्चर था तब वो कचरे वाला आया था, मैंने पॉज करके भी गया था. मैं उनको पूछा भी, मैं कल नहीं आया था, पूछा मैंने, तबीयत ठीक है ना, अच्छा है ना. You won't believe he responds to my words only. Rest anyone ask anything na, no one asked to him first of all कि how are you and what you're doing, you didn't come yesterday, you're okay ना. What they'll ask, कल क्यों नहीं आ रहे, कचरा ऐसे पड़ा था ना यहाँ पर, समझते नहीं तेरे को 2 दिन का कचरा कितना जमा हो जाता है. I have seen this kind of words people talking to that person. अरे वो इंसान है, मजबूर है यार, वो जॉब कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको ऐसे बोलोगे. And whenever he talks to me now, I can see the smile on his face because he feels good in that case कि yes, someone is asking me, and that makes them ki work more okay towards it, whatever job you're doing. But if you treat them as a human being, if you treat them equally, they will also do their job in the best possible way. Ready? So if you instruct them in the best methods, if you train them in the best way, obviously they are going to perform the best. Now, to give financial incentives in the form of a piecework. अगर तुम लोग कोई टारगेट अचीव कर लेते हो, तुमने भी देखा रहेगा मार्केटिंग में जो रहता है, जिनका जॉब मार्केटिंग करता है ना, वहां पे ना एड में भी लिखा रहता है कि फिक्स सैलरी, खाना पीना मुफ्त प्लस इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स मतलब ये क्या होता है? मतलब अगर तुम्हें जो टारगेट दिया गया आता है, महीने में इतना सेल करना है या इतने कस्टमर्स को लेके आना है या जो भी इतने अकाउंट्स ओपन करना है या इतने सिम कार्ड बेचना है या जो भी रहेगा, if you achieve this, you will be given financial incentive. That means you will be given what you can say that in the best possible way I can help you, like that. So you have to give financial incentives also in the form of piecework. अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो उनको कोई गिफ्ट दे दो कंपनी की तरफ से. अभी कल या परसों में न्यूज में आया था, मटा करके, महाराष्ट्र टाइम्स करके पेपर का ऐप है मटा करके, उसमें आया था इंडिया में कहां पर पता नहीं, मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ा, डिटेल नहीं पढ़ा. आई थिंक चाइना में शायद से, हाँ, हुवेई का जो मोबाइल फोन है 5G वाला, कंपनी ने अपने हजारों या लाखों एम्प्लॉइज को वो गिफ्ट में दिया, विच इज अराउंड 1,53,000 का फोन है कुछ तो, वो 19,000 युआन का कुछ तो है, 19,000 युआन कुछ तो है वो, which comes out to around 1,53,000, and the employees are finding it not useful to them, so they are selling it in online for double the price. मतलब अगर 1,53,000 इंडियन रुपीज है तो वो लोग उसको 2 से 2.5 लाख में बेच रहे हैं, कंपनी के पीपल एम्प्लॉइज. सी उन लोग का लुकआउट है वो, अगर उनको यूज नहीं है तो फिर उसको रख के करेंगे क्या. बट यहाँ पर मेन कहने का मतलब ये है कि अगर तुम उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हो, अगर वो तुम्हारे एथिक्स के बाहर जाता है, ऑडिट में दिखाना पड़ता है या तो फिर इनकम टैक्स भरना पड़ता है या जो भी रहेगा वो,
So then you can give them in other ways. गिफ्ट के रूप में दे सकते हो. So that should be the focus, to select the best people for the job, to instruct them in the best method way, or to give them enough financial incentives in the form of piecework. What one problem is there? Group norms. Group norms मतलब हर एक पीपल और हर एक एम्प्लॉय को पहले प्रोजेक्ट लीडर रहने दे, या जूनियर प्रोजेक्ट डेवलपर रहने दो, या फ्रेशर रहने दो, कुछ भी रहने दो. कंपनी के अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, तो उसके हिसाब से परफॉर्म करना पड़ता है. जैसे मैंने कहा, गलती करते रहते हैं इंसान, एक्सेप्टेड, गलती इंसान से ही होती है. अगर गलतियां तो भगवान से भी हो गई है बहुत से, तो अगर हमने हिस्ट्री में देखा रहेगा तो रामायण महाभारत में देखा रहेगा, तो जब गलतियां भगवान से हो गई उसको सुधार नहीं सकते हैं, तो हम लोग कौन है? हम लोग इंसान ही है, उन्हीं के बनाए हुए हैं हम लोग. तो गलती हमसे हो गई है, लेकिन हर बार गलती करोगे, कंपनी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट ऑल्सो ना. एक बार गलती किए, ठीक है, समझा दिया, वार्न कर दिया. 2 बार गलती किया, समझा दिया, वार्न किया, तुम्हें याद भी था, ओके. लेकिन तीसरी बार या चौथी बार गलती करोगे, obviously company won't be able to bear that loss because of you. It has incurred because of you, which the company has taken. Then obviously you will be fired from the company, or you will be thrown out, or whatever it is. So that is the problem over here in the organizational behavior, is group norms or the company's ka, you can say the terms and conditions for the working environment. Okay, so I hope everyone is clear with this slide. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. I hope everyone is Yes, sir. everyone is present over here. I think no one is sleeping. Yes, sir. Sir. Yes, नहीं तो बोलेंगे विनय सर का प्रवचन अच्छा था, मस्त नींद लागली, छान झोप लागली, चला आता पूर्ण करतो झोप, सकाळी लवकर उठलोय. I hope this is not the scene. Okay, okay. So can you go to next slide then? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, हॉथॉर्न इफेक्ट. ये अलग अलग मैनेजमेंट वाले लोग थे जो उन्होंने ये कंसेप्ट सोचा कि भाई हम लोग ऐसे करते वैसे करके. 1920s series of experiments at the Hawthorne plant of Western Electric Chicago found that simply showing an interest in a group increased productivity. जैसे मैंने कहा कि if you accept the performance of an employee, then obviously that performance will be doubled in the next performance or in the next occurrence. For example, कल को अगर तुमने देखा रहेगा आईपीएल का मैच, देखा आईपीएल का मैच कल? हाँ देखा. Yes, sir. कितने लोग फॉलो करते हो? कितने लोग फॉलो करते हो? जरा हाथ ऊपर करो आईपीएल को ये साल का. ऋतिक कामेरकर, महावीर, शुभम, ओके, ओनली 3. ओके, पंकज क्या बात कर रहा है? तो पंकज फेसबुक पे डालता रहता है, आईपीएल फॉलो करता है, बाकी पढ़ता फिरता है कि ऐसे टाइम पास करता रहता है? उसने पढ़ाई सर, छोड़ सब- दी. पंकज ने सर सब मैनेज हो जाता है. पंकज ने पढ़ाई छोड़ दिया है? नहीं सर. हाँ सर, परसों मिला था तब बोल तो रहा था. पढ़ाई छोड़ दिया फिर पकड़ा किसको तूने अभी फिर? क्योंकि फेसबुक पे मैं देखा कि बहन लोग, तेरे सब लोग बहन बन जाते हैं, जितनी भी क्या लड़कियां सर? सब तेरे बहन बन जाते हैं. पोस्ट डाला था. All Indians are my किसी और- brothers and sisters. किसी और का पोस्ट दिखा रहेगा सर आपको. अच्छा, ऑल इंडिया सामने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लेज ना, वो प्लेज को देखोगे ना स्कूल में खाली पढ़ाते हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं. क्यों? कॉलेज में जरा प्लेज अलग बन जाता है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स. ओके, जो सही बात सपाट, है. यस सही बात है, पता है वो तो, इसलिए तो स्कूल में प्लेज लेते हैं ना. कॉलेज में कहाँ प्लेज लिया हुआ है? नहीं, जूनियर कॉलेज में भी नहीं होता भाई. आजकल तो स्कूल में भी शायद, प्राइमरी में शायद प्लेज हो जाए, 10th में भी प्लेज नहीं होता, सिर्फ नेशनल एंथम होता है. ओके, नाउ कंसीडरिंग यस्टरडेज मैच, मैन ऑफ द मैच कौन था कल? Rahul त्रिपाठी. Duplessis. त्रिपाठी. राहुल त्रिपाठी. फॉर व्हाट पर्पस? क्या किया उसने? 10 के 10 विकेट लिए चेन्नई के. नहीं, 81 रन स्कोर किया इसके लिए. 81 स्कोर्ड 120 बॉल में. नो, 51 बॉल. 51 sir, 51 था 51. 51 बॉल, नॉट इवन 51 बॉल, 50 बॉल में 81 मारा. 51st बॉल पे तो आउट हुआ वो.
आउट हुए बॉल को काउंट नहीं करना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो वो आउट हुआ है वो तो 50 बॉल में 81। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन किसने देखा क्या उसका, जो हर्षा भोगले उसका इंटरव्यू ले रहा था? नहीं सर, नहीं देखा? नहीं। मैं ना मैच को ना क्रिक बस पे फॉलो करता हूँ और लाइव मैच जो है ना, लाइव मैच का मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन सुनता हूँ लाइव में, वो मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं बाकी सब क्रिक बस पे फॉलो करता हूँ मैं, क्योंकि बाकी सब नोट्स बनाना रहता है, पढ़ना रहता है, ये वो सब तैयारी करना रहता है। अगर 7:30 बजे से अगर मैं आईपीएल देखते बैठूंगा 10:30 11 बजे तक 3-4 घंटा, नहीं बाबा इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो मैं उसको क्रिक बस पे फॉलो करता हूँ। एक टैब में क्रिक बस ओपन रहता है और दूसरे टैब में मेरा काम चालू रहता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद, वैसे तो घर पे टीवी नहीं है मगर फिर भी जुगाड़ करके मैं देख लेता हूँ नेट पे से, ऑनलाइन में एक ऐप है जो मिल गया मेरे को, जहाँ पे लाइव टीवी दिखता है पूरा, तो वहां पर देख लेता हूँ मैं। हेलो, क्या हुआ? सर आपका नाम बोला। नहीं, वो नहीं, वो ढूंढ लेना, वो मैं ढूंढ के निकाला। पागल है क्या रे? जो मैंने मिल गया सर, ढूंढ के निकाला थोड़ी मैं दूंगा ऐसे। सर सब मिल चार गया चार है। अल्टरनेटिव है हम लोग के पास। बस 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 पंकज पाल, बस फेसबुक वाला वही काम कर सकता है। दुर्गा शुभम दुर्गावली देख लेना, 4 अल्टरनेटिव है पंकज के पास। सर Yes, उसने ही sir. दिया वो है मेरे को। बाजू वाले का केबल कनेक्शन अपने घर में लगाया रहेगा वो। सर हॉटस्टार ले लिया मैंने। हॉटस्टार नहीं रे, है बहुत से ऐप हैं। ओके, एक तो वेबसाइट है आईपीएल स्टार फास्ट डाउनलोड डॉट आईपीएल करके कुछ तो है, फास्ट डाउनलोड डॉट आईपीएल करके है। वो एक वेबसाइट है जो कि हर दिन डोमेन चेंज होता रहता है उसका। एक थॉप टीवी करके है, THOP, थॉप टीवी करके एक ऐप है, वहां पर दिखता है पूरा लाइव। ओके, तो ठीक है, कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हर्षा भोगले ने उसको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर तुमको पता रहेगा ना, शाहरुख खान भी दुबई में है। अब ऑब्वियसली पाम जुमेरा में उसको उसका शेख ने घर दे दिया उसको गिफ्ट करके पाम जुमेरा में, तो वो दुबई में तो रहेगा ही। अगर मैच चल रहा है वहां पर तो यूएई में, तो वहां पर ही है। तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त शाहरुख खान ने कुछ तो उसको कमेंट बोला, यू वोंट बिलीव राहुल त्रिपाठी हर्षा भोगले का आंसर देने का छोड़ के शाहरुख खान के पास देख के उसके साथ बात करने लग गया। और हर्षा भोगले ने बोला भी, ही इज आंसरिंग टू माई क्वेश्चंस बट लुकिंग एट शाहरुख खान, आई अप्रिशिएट दैट, बोला उसने। क्योंकि राहुल त्रिपाठी को हर्षा भोगले का क्वेश्चन से ज्यादा शाहरुख खान ने जो उसको चिल्ला के जो कमेंट दिया उसको, एप्रिशिएशन जो दिया ना, वो उसको बेटर लगा। तुम लोग ना चाहिए तो ना IPLTV.com करके आता है इसका, आईपीएल का ऑफिशियल साइट है, वहां पर ना उन्होंने पार्ट में ना तुमको देते हैं, हाईलाइट्स भी दिखाएंगे, जो सुपर सिक्सेस मारा है वो दिखाएंगे, किसी ने अगर अच्छा इनिंग किया रहेगा जैसे राहुल त्रिपाठी का इनिंग जो है उसका हाईलाइट्स दिखाएंगे। तो अगर इसका ना पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अगर है ना कल के मैच का, वो जा देख लेना करके, यू विल सी द चेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस व्हेन शाहरुख खान सेड द कमेंट टू हिम व्हेन ही अप्रिशिएटेड फ्रॉम द बैकग्राउंड। उसका ना एक्सप्रेशन चेंज हो गया, वो मतलब ही वॉज एक्सप्रेसिव मोर आफ्टर सेइंग दैट। यहां पर कहने का मतलब क्या है कि शोइंग एन इंटरेस्ट इन अ पर्सन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। यू शो द इंटरेस्ट इन ग्रुप और टीम और इंडिविजुअल। और एक वीडियो आया है जहां पर दिनेश कार्तिक राहुल त्रिपाठी के साथ जाते रहता है, उनके प्लेयर्स का जो रास्ता रहता है जाने के लिए वहां पे, और वहां से वो शाहरुख खान ऊपर बालकनी में खड़ा है कहीं पे, तो वहां से वो शाहरुख खान को बोल रहे हो, ये जानते हो कौन है ये राहुल त्रिपाठी, अपना प्लेयर ओपनर था आज, मैन ऑफ द मैच आज का वो। मतलब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के पहले दिनेश कार्तिक शाहरुख खान को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ये राहुल त्रिपाठी है, ये शायद से मैन ऑफ द मैच बन सकता है ये करके। तो उसने शाहरुख खान ने ऊपर से उसको चीयर अप किया, बोला कि वी आर प्राउड ऑफ योर परफॉर्मेंस, कीप इट अप करके ऐसा। तो अगर तुम्हारा मालिक अगर तुम्हें तुम्हारे परफॉर्मेंस को अप्रेज करे सबके सामने, उसको अप्रेजल दे, यू वोंट बी फीलिंग मच मोटिवेटेड देन दैट। मतलब अगर समझो तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, ग्राउंड में तुमको देखा मैंने क्रिकेट खेलते हो और मैंने बोल दिया वाओ नाइस शॉट यार, यू प्ले वेरी गुड क्रिकेट यार, यू विल बी द फ्यूचर। क्या है सर, जिंदगी में कभी बैट पकड़ा नहीं यार, आप मेरा फ्यूचर बोल रहे हो, क्या सर।
बकबक अच्छा करता है एसपीएम का, क्रिकेट का तुझे क्या घंटा पता है, ऐसे बोल के निकल जाओगे। लेकिन यही वर्ड्स सेम सेम मेरे वर्ड्स अगर सचिन तेंदुलकर या कोई विराट कोहली या तो धोनी या तो कोई बोल दे, मां कसम जिंदगी भर उसको तुम रट के सुनते रहोगे रिकॉर्ड करके। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन हैज शोन एन इंटरेस्ट इन अ ग्रुप or in a person, and obviously that will increase your productivity. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. There is the two theories. Theory X, there is a need for coercion, direction and control of people at work. Coercion मतलब bonding. यहाँ पर एक बॉन्ड रहना चाहिए टीम में। टीम में अगर बॉन्डिंग रहेगा तो ही परफॉर्म कर पाओगे। अगर टीम में एक भी प्लेयर नाराज है प्लेइंग 11 में, ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉलर गुस्सा है टीम के सिलेक्शन से या तो फिर खुद के इससे, तो अगर उसने बोला कि एक ओवर में, लास्ट के एक ओवर में तुझे 20 रन है डिफेंड करना है, और अगर उसको अगर गुस्सा है टीम पे, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वो उसको 20 से कम में रोकेगा। वो डालते जाएगा वाइड, नो बॉल डालेगा, बाद में फिर बोलते ना शॉर्ट पिच बॉल डाल देगा, जहां पर 6 छक्के, तीन छक्के मार दे मैच खत्म। तो वहां पे टीम को बॉन्ड करके रखना रहता है। कोर्शन, डायरेक्शन, एक प्लेयर को डायरेक्ट करना रहता है। अगर कोई बॉलर, तुमने देखा रहेगा, अगर कोई बॉलर को अगर कंटिन्यूस 3-6 पड़ जाए ना, पहले 3 बॉल पे 4-5 लोग आके उसको गाली देके जाते हैं। जैसे हम लोग देते ना, अबे तेरे बाप ने भी बॉल डाला था क्या, सारे इसको सामने डालना है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो रहा है, बराबर ऐसे बोलते रहेंगे उसको। समझो जसप्रीत बुमराह को जैसे पैट कमिंस ने 6 मारा था केकेआर के मैच के अगेंस्ट में, 3 ओवर में 8 रन, लास्ट के ओवर में 25 रन, तो रोहित शर्मा ने बोला रहेगा ना उसको, तेरे बाप ने भी कभी लास्ट बॉल डाला था क्या बे। और जब आईपीएल का जो सुपर ओवर हुआ था, जहां पे जसप्रीत बुमराह को दिया था, जब उसको 8 रन डिफेंड करना था, सिर्फ 7 रन डिफेंड करने का था, और विराट कोहली ने उसको 4 मार दिया था चौथे बॉल पे, तो रोहित शर्मा ने वही बोला था ना, अब तो जिंदगी में कभी तो सारे यहाँ पे खड़े रहे पिच पे, देखते को देखता हूँ बॉलिंग में दे, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं तो क्या बोलते हैं फिर वहां पे लोग, क्या Sir, बोलते next हैं time. वो तो पता नहीं क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन सर जो आपने बोला ना वो तो कतई नहीं बोलते। एग्रीड? हाँ सर। जो मैं बोला ना वो सिर्फ अपने गली के क्रिकेट में होता है, जहां पर हम लोग बोलते हैं इसको, अबे वाइड कितना डाल रहा है, अबे ये क्या साले मैच हारेगा क्या इसी ओवर में, तेरे बाप ने भी कभी बॉल डाला था क्या, तो क्यों ओवर क्यों लेता है, ये सिर्फ हम लोग बोलते हैं गली क्रिकेट में। लेकिन वहां पर प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। तो वहां पर क्या करते हैं, देख भाई तू थोड़ा ऐसा डाल वैसा डाल, उसको थोड़ा सा स्लो डाल, नकल बॉल डाल या यॉर्कर डाल, ऐसे डायरेक्शन देते हैं उनको। मतलब अगर तुझे लगता है कि भाई तेरे बाउंसर पे वो पुल करके 6 मार रहा है, या तो थर्ड मैन पे शॉट खेल रहा है 4 मार रहा है, तो तू यॉर्कर डाल ना। कभी कभी यॉर्कर भी गलत हो जाता है, लो फुल टॉस हो जाता है, और स्ट्रेट बैट घुमा दिया तो बॉलर के सर के ऊपर से 6 जाता है, एक्सेप्टेड, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है वो। लेकिन मैं एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ ना। लेकिन इसी में 3 6 गिर गए, शेल्डन कॉट्रेल, राहुल तेवाटिया, याद रहेगा, पंजाब एंड राजस्थान का मैच, हाँ सर। 226 पंजाब का स्कोर, 227 राजस्थान का स्कोर। राहुल तेवाटिया पहले 11 बॉल में कुछ तो 4 या 5 ही रन मारा था, फिर शेल्डन कॉट्रेल आ गया बेचारा, ठोक दिया 5 छक्के, देखा रहेगा। हाँ सर। देखा था ना मैच वो। तो तुम्हें क्या लगता है केएल राहुल उसको बोला रहेगा डाल 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 डालने, अबे एक बॉल भी क्यों छोड़ा, डालने था, 6 के 6 छक्के मार था, बेचारे का युवराज सिंह बन जाता ये तो अपने मैच में ही, दूसरा युवराज सिंह बन जाता, वो भी लेफ्टी था ये भी लेफ्टी है, उसने भी 6 के 6 जगह पे मारा था, इसने भी 6 के जगह ठोक दिया तेरे को, बराबर ना, ऐसे ही बोलता ना। सर वो भी स्लॉट में था। See, this is the part of the game. It happens, but you have to learn from your mistakes. उसके बाद के मैच में देखो, जब मुंबई के साथ में था, मुंबई के साथ मैच शायद से उनका, शेल्डन कॉट्रेल जब आया था, 4 ओवर में 22 रन 2 विकेट कुछ तो शायद से उसका,
हार गए बात अलग है, लेकिन जब उसने 4 ओवर में 52 दिया था उस वक्त, मेरे को अच्छे से याद है, 4 ओवर 52 और शायद से एक ही विकेट था, तो 4 ओवर 52 मतलब इकोनॉमी 13 का हो गया, मतलब एक ओवर में 13 रन दे रहे हो तुम लोग यार, बीइंग अ फ्रंट लाइन बॉलर। ऐसा भी नहीं कि पार्ट टाइमर है, वो फ्रंट लाइन बॉलर है। लेकिन नेक्स्ट मैच में उसने कम बैक किया, 4 ओवर में 22 रन 2 विकेट कुछ तो उसने मुंबई के अगेंस्ट में दिया वो, ठीक है, उसने अकेले किया रहेगा, बाकी लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। तो इट इज अ टीम एफर्ट, एंड the person who is directing the team in a proper direction, that person will always be finding success only, rarely they'll be finding a failure। अगर मुंबई का मैच देखोगे ना आरसीबी के अगेंस्ट में, वो रेयर फेलियर था मुंबई का, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। पोलार्ड ने 100 मैच घुमा दिया था पूरा, लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए था, शायद से एक बॉल में 5 रन चाहिए था, मार दिया चौका, हो गया टाई। फिर बाद में आ गया गलती से सुपर ओवर, तो रोहित शर्मा आने के बजाय पांड्या को भेज दिया उसने। पांड्या आंख बंद करके बैट घुमा रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसी मैच में आंख बंद करके बैट घुमाया रहेगा, मतलब 3 बॉल में कुछ तो 5 या 6 रन बनाया उसने खाली, और उसके बाद वो आउट हो गया हो। फिर रोहित शर्मा आया, उसको तो बॉल ही नहीं मिला। लास्ट बॉल पे जब आउट हो गया पांड्या, तब तक क्रीज क्रॉस कर चुके थे, तो पोलार्ड को बॉल मिला था खेलने के लिए, तो वो भी ट्राई किया लेकिन नहीं लगा। ठीक है, ट्राई तो किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को बोला कि तू साले आज के बाद तू ना सुपर ओवर में देखता है तू कैसे आएगा करके, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि यू नीड टू डायरेक्ट। ठीक है, वो मैच फेल हो गया, एक्सेप्टेड, लेकिन उसके बाद वाले मैच में, पंजाब के मैच में 11 बॉल में 30 ठोक दिया पांड्या ने, तो जिसकी वजह से मैच जीत गए हम लोग। तो 11 बॉल में 30 रन मजाक नहीं है, वो भी स्लॉगिंग ओवर्स में आया था। शमी था बॉलर, कोटरेल था, और दूसरे लोग बॉलर थे जो कि 140 कंसिस्टेंटली डालते हैं। तो वहां पे उसने, रोहित शर्मा ने बोला ठीक है हो गया ना गलती, ठीक है एक ही मैच हारे हम लोग, अगर आईपीएल भी नहीं जीतते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अगले साल जीत लेंगे। वैसे भी मुंबई का तो ऑड ईयर ही है, इवन ईयर में कभी जीता नहीं उन्होंने। पहला मैच 13 में जीता, फिर 15 जीता, फिर 17 जीता, फिर 19 जीता, और अभी तो 20 में है, और हार भी गया तो चलेगा, 21 में तो जीतने वाले हम लोग का तो ट्रेंड ही है ऑड ईयर में। फिर इवन ईयर में जिसको जितना जीत लो भाई, वैसा, मतलब जोक मार रहा हूँ ये, लेकिन बोल रहा फिर भी मैं ये। तो वहां पे ना तुम लोग को बॉन्डिंग बना के रखना चाहिए, तुम्हें डायरेक्ट करने वाला चाहिए और कंट्रोल रहना चाहिए। अगर तुम देखोगे ना, मुंबई की एक ही टीम है जिसने सिर्फ एक ही चेंजेस किया अभी तक 6 मैचेस में। सौरभ तिवारी पहले 2 मैच खेला था, उसके बाद इंजर्ड हुआ, उसके बाद से नहीं खेल पा रहा है वो। और बाकी जितने भी टीम है ना, हर मैच में कोई ना कोई तो चेंज दिखाया तुमको। क्यों? उसने एक सेम टीम रखा, क्योंकि उसने बोला बाकी लोग जो नहीं खेल रहे हैं डरो मत यार, तुमको भी चांस मिलेगा। लेकिन अब जब ये बैलेंस टीम है जो परफॉर्म कर रही है, तो व्हाई टू डिस्टर्ब द बैलेंस, you will get your chance। First, let us win us 6 to 7 matches. Let us get qualified for the playoff। देखना प्लेऑफ क्वालिफाई होने के बाद शायद बुमराह भी बैठ जाएगा, पोलार्ड भी बैठ जाएगा, बाद में जो बैठे हुए प्लेयर्स है उनको मिलेगा चांस, जैसे नाथन कोल्टरनाइल जो है, वो जो अभी इंजर्ड होके आया है, रिकवर होके आया है, पेटिंसन को बिठा देंगे, बोलेंगे तू बहुत मैच खेल लिया, अभी आराम कर, अभी नाथन कोल्टरनाइल को खेलने दे, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि हम लोग क्वालिफाई तो कर चुके प्लेऑफ के लिए, आईपीएल से बाहर तो नहीं है हम लोग। ठीक है, तो दैट शुड बी द कंट्रोल ऑफ पीपल ऑल्सो एट वर्क। पीपल शुड नॉट फील दैट कि मैं सिर्फ पानी लाने का काम कर रहा है, बैट लाने का काम कर रहा है, ग्लोव लाने का काम कर रहा है, मेरे को खाली इसी के लिए खरीदा है आईपीएल में। नहीं, तुम्हें वैसा उनको भरोसा देने आना चाहिए कि यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीम, बट नॉट नाउ, योर रोल इज समथिंग एल्स विच विल बी गिवन लेटर ऑन। तो दैट इज वन थियरी। थियरी व्हाई वर्क इज एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले। मतलब काम को तुमको, जैसे तुम आराम करते हो, जैसे तुम खेलते हो, जैसे तुम एंजॉय करते हो, जैसे तुम एंटरटेन होते हो, वैसे काम को भी एक नेचुरल काम समझ लो। इट इज अ नेचुरल वे। यू हैव टू सर्वाइव, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क, देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म। तो काम को भी नेचुरली एंजॉय करो, जैसे तुम रेस्ट करते हो, प्ले करते हो। थियरी एक्स यूज करके करो, थियरी वाई यूज करके करो, लेकिन दोनों में से कोई एक थियरी तुमको यूज करना पड़ेगा और तुमको वैसे करना पड़ेगा। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Hawthorne effect, clear everyone? What this theory X and theory Y means? Yes, sir. Yes, sir.
selecting the best people. Read this. Just everyone read this. Selecting the best people. What it says. 3 points. Read and let me know if I need to explain anything in that. If not, then we'll continue the next slide. Done, sir. किसी के पास इन शॉर्ट्स है क्या? इन शॉर्ट्स करके न्यूज का ऐप आता है Yes, किसी के sir. पास इन शॉर्ट्स Yes, sir. है? Yes, sir. है. उसमें ना न्यूज आया हुआ है कल का मैन ऑफ Yes, द sir. मैच कौन था? Rahul Tripathi. राहुल त्रिपाठी. तो मैंने बोला ना ऊपर से शाहरुख ने जो चिल्लाया था उसको मोटिवेट किया. Yes. क्या बोला पता है क्या उसने? Yes, sir. क्या बोला था उसने? Dialogue from his movie, sir, about his name. नाम तो सुना होगा, something like that. यस, राहुल नाम तो सुना ही होगा. दिस इज व्हाट ही सेड फ्रॉम द स्टैंड टू हिम. देखोगे तो बहुत से मूवी में देखो उसके कॉमन नाम राहुल ही है. तो इमेजिन कि अगर शाहरुख खान अपना नाम तुमको दे रहा है, अपने कैरेक्टर का नाम तुमको दे रहा है और बोल रहा है कि नाम तो सुना ही होगा, मतलब फ्यूचर में भी ऐसे पब्लिक बोलेंगे, परफॉर्म करते जाओ, सब लोग वही बोलेंगे राहुल नाम तो सुना ही होगा. मतलब आईपीएल के हर मैच में केकेआर की तरफ से खेलते वक्त मैन ऑफ द मैच राहुल त्रिपाठी, मैन ऑफ द मैच राहुल त्रिपाठी. तो ये कॉमन नाम हो जाएगा राहुल त्रिपाठी. देन यू विल बी सेइंग राहुल, अच्छा नाम तो सुना ही होगा. So imagine what kind of motivation that person will be getting. So that is what you need to take care of when you are working with the employees. You need to make sure that they are giving their best when you give them the best, when you treat them the best. Getting? Yes. Read. Done with this, everyone? Any doubt, anyone in this? No, sir. No, sir. No, sir. Clear? Can we go to next slide? Yes, sir. Do good software developers have innate characteristics? Read this, what they say. Innate matlab, can anyone tell what do you mean about innate? From self or something like that. Like you By don't birth. have to learn it. It's by birth. By birth बोलते हैं ना कि by birth ही इसका क्वालिटी अच्छा है, वो born talented है. So वैसा do good software developers have innate characteristics? मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उनके अंदर पैदाइशी कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कैसा? नहीं. Read what this says. Read everyone. Innate means inbuilt, by birth, natural. You can say that. I have sent the attendance link in the chat box. I want 47 responses. Please, those who are present here, only those people fill the attendance. Don't give it to that other people sending it in an official group personally. Don't do those silly things. Okay. 47 responses I want. Slide number 6. We'll continue next time. I hope you have the next lecture also at 11 a.m. I think, right? Yes, sir. Sir. Bye, Okay. sir. So once Bye, you're sir. done with the lectures, you can leave and get ready for next lecture. Till we meet next time. Stay home, stay safe, take care. Bye bye everyone.